Let's turn our Bibles to the book of Acts this morning. तो आज के सुबह में इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे प्रेरितों का काम We've been praising the Lord. और हमने परमेश्वर की स्तुति किए We praise the Lord by congregational singing. और पूरे सभी लोग मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं We praise the Lord by special singing. और स्पेशल गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Stella and Anisha sang great for the glory of शेला और God. अनिशा परमेश्वर के लिए महिमा के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से गाए And then Merlin came and praised the Lord wonderfully. और दूसरी सिस्टर भी परमेश्वर की महिमा के लिए भी बहुत And we are तरीके से so गाए। thankful that we have this breath to praise the Lord. और हम प्रभु को धन्यवाद कि हमारे पास सांस से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन। I'm not hearing. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Wonderful. Acts chapter 16. प्रेरितों का काम 16 अध्याय से हम देखेंगे आज। That basically what Sister Merlin sang this morning was about God's protection in all the times of our lives. और जो सिस्टर ने गाई इसका गीत का मतलब यही था कि परमेश्वर की जो सुरक्षा है वो हमेशा के लिए है He covers us under His wings. और अपने पंखों के तले वो हमें छिपा के रखता है। And we are so thankful that it is true today also. और आज हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये आज भी सत्य है। It says in every situation and circumstances, I will still continue to have faith in God. और हर एक परिस्थिति में हर एक घड़ी में हम अपने विश्वास को परमेश्वर में बरकरार रखेंगे। God's children will continue to praise God in every situations of life. हर एक स्थिति में भी परमेश्वर की जो बच्चे लोग हैं वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। And that's the reason why God calls us that we are His children. और इसलिए परमेश्वर हमें पुकारता है अपने बच्चों के जैसा। Now sometimes if we just put our ears and our eyes upon the world, fear may come. अगर हम कुछ समय अगर हम अपने नजरों को संसार में रखेंगे हमारे जीवन में डर आ सकते हैं। When you are always watching TV, the news on the TV, fear may come in your heart and mind. जब हमेशा आप टीवी वगैरह देखेंगे तो आपके हृदय में आपके जीवन में क्या आएंगे? डर आएंगे। When the news tells 6,000 people have corona in Goa, fear comes in your heart. जब गोवा में 600 लोगों को कोरोना हुआ अगर आप टीवी में देखेंगे तो आपके अंदर डर आ जाएंगे। Oh, 36 people died with corona, fear comes in your heart. तो 36 लोग कोरोना से मर गए तो आपके अंदर डर आ जाएंगे। But hundreds of people dying every day with a heart attack and other diseases. और बहुत से रोग बीमार के द्वारा 100 लोग हर दिन मर रहे हैं लोग। But then nobody tells about that. लेकिन उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। But then the media wants to put fear in your heart. लेकिन मीडिया क्या करना चाहते हैं? आपके हृदय में डर पैदा करना The चाहते news हैं। want to build up fear in your mind. जो मीडिया है आपके अंदर वो डर को पैदा करना चाहता है। But during this time when God's people remove your eyes away from the TV and puts your heart and mind and your eyes upon the word of God, तो ये समय में आपको क्या करना चाहिए? टीवी से मीडिया से आपकी नजर को हटाकर परमेश्वर की वचन में आपकी नजर को रखना है। we receive comfort and strength and power. हम आराम, शक्ति और सामर्थ को हम ग्रहण करते हैं। Fear goes away from us. हमारे जीवन से डर भाग जाता है। Because God has not given us the spirit of fear. क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा को नहीं दिया But है, He gave us power. लेकिन हमें सामर्थ की आत्मा He gave us a sound mind. और सही मन की आत्मा He को gave दिया us love. और प्यार की आत्मा को He दिया gave है us hope. और आशा को दिया है। He did not give us fear to the world. और वो संसार को डरने के लिए हमें नहीं दिया If है। there is anybody that you should fear for, अगर आप किसी को अगर डरना चाहते हैं, you and I should fear with a godly fear unto the Lord Jesus मुझे Christ. केवल परमेश्वर की भय मानना है। I fear God because I don't want to offend Him. मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ क्योंकि मैं उनको दुख नहीं देना चाहता हूँ। I fear God because He loves me very much and I don't want to hurt Him. मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ क्योंकि मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। I don't fear God because He's going to kill me. मैं परमेश्वर को नहीं डरता, इसका मतलब ये कि परमेश्वर मुझे हत्या करेगा। God is not after in killing me and you, परमेश्वर मुझे हत्या करने के पीछे नहीं है, but He loves us very much क्योंकि हमसे वो बहुत प्यार करता है and He protects us very much और वो हमें बहुत ही रक्षा करता है and He takes care of us और हमारे हर जरूरत को वो पूरा करता है and He's so loving and He's so good. और बहुत ही दयालु, बहुत ही प्यारा है। And that's why I fear Him, इसलिए मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ because I don't want to hurt my क्योंकि God, मैं अपने परमेश्वर को दुख नहीं देना चाहता हूँ, because He loves me. क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। And that's why we need to praise Him. इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। We will praise Him while we are on the mountains. जहाँ पहाड़ों में होंगे उस समय भी हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
We will praise Him while we are in the valley. जब हम नीचे भी रहेंगे वहां पे भी हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। We will praise Him when everything is good. हर एक चीज अच्छे में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। We should praise Him when things are not going good. जब हमारे जीवन में अच्छी चीजें नहीं होते तभी हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। And there is power in praise. और जब हम स्तुति करते हैं वहां पे सामर्थ होता है। And this morning we are going to continue and decide in our life that we will continue to praise Him. और हमारे जीवन में डिसाइड करेंगे हम परमेश्वर की आराधना हम लगातार करेंगे। We'll praise Him when everything is fine in our home. जो हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है उस समय हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। We'll praise Him in our sickness. हमारे रोग बीमार में भी हम स्तुति करेंगे। We'll praise Him in good health. अच्छा स्वास्थ्य में भी हम उसकी स्तुति करेंगे। We'll praise Him when we have money in our pocket. जब हमारे जेब में पैसा होंगे उस समय भी हम स्तुति करेंगे। We'll praise Him when we don't. जब हमारे पास नहीं होंगे तो उस समय भी हम स्तुति करेंगे। We praise Him in our sorrows. हमारे दुख में भी हम स्तुति करेंगे। We will praise Him in our joy. और हमारे आनंद में भी हम स्तुति करेंगे। When we will praise Him when we have chicken curry. जब हमारे पास चिकन करी होंगे उसमें हम स्तुति करेंगे। We'll also praise Him with kanji and pickle. और कंजी और पिकल के द्वारा भी हम परमेश्वर की We स्तुति will करेंगे। always praise Him. और हमेशा हम स्तुति करेंगे। There is power in praise. और स्तुति में सामर्थ है। And today we are going to study from the Word of God about the power of praise. तो आज हम सामर्थ के बारे में देखिए स्तुति में क्या सामर्थ है। In the Word of God we read, और वचन में हम पढ़ते हैं and especially in the book of Psalms, और भजन संगीत में that you and I are called to praise the Lord. हमें कहा गया है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। Praise means giving Him glory, स्तुति मतलब परमेश्वर को महिमा देना, lifting His name on high, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, thanking Him for what He has done, जो कुछ भी परमेश्वर ने किया उसके लिए हमें धन्यवाद देना, telling the whole world how great our God पूरे is. संसार को कहना कि कितना महान है हमारा We don't परमेश्वर। complain about, oh God, why did you do? हमें कंप्लेन नहीं करना कि प्रभु आपने क्यों ये ऐसा किया, But we are going to praise Him for all that He is doing. लेकिन जो कुछ भी हमारे जीवन में वो कर रहे हैं उसके लिए हमें स्तुति देंगे। Because you and I may not understand today. क्योंकि आज हम शायद नहीं समझेंगे। My dear friend, even the bad that is happening in your life today is for our good that will turn मेरे tomorrow. प्रिय जो आज खराब हो रहे हैं वो भी आपकी अच्छाई के लिए जो आने वाले दिनों में हो रहे हैं। Our sorrow today will turn into joy because God is in control. जो हमारे आज दुख है वो आने वाले दिनों में वो सुख से बदल जाएगा कि हमारे परमेश्वर कंट्रोल में है। If we don't have sorrow today, we will not know that God is our comforter. अगर हमारे पास आज दुख नहीं तो हम नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारा सहायक है। If we don't have sorrow in our life, we will never know that God brings joy and happiness in our life. अगर हमारे पास दुख तकलीफ नहीं होंगे तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर शांतियों को हमारे जीवन में लाता है। Wealth doesn't bring happiness and joy. धन आपके जीवन में शांति को नहीं लाता है। Or good health may not bring joy. चाहे अच्छा स्वास्थ्य भी आपके जीवन में आनंद नहीं लेके आ People सकते हैं। are, some people are very healthy, बहुत से लोग बहुत से हेल्दी हैं उन लोग, but mentally they are sorrowful. लेकिन मेंटली उन लोग बहुत ही दुखी हैं। They may have great muscles, चाहे उन लोग के पास बहुत ही बड़े बड़े मसल होंगे, but they are sorrowful in their heart. लेकिन अपने हृदय में उन लोग दुखी हैं। But my dear friend, today God is calling you and me to rejoice even in the midst of sorrow. लेकिन मेरे प्रिय आज परमेश्वर हमारे दुख में भी हमें आनंद मनाने के लिए कहते हैं, Because He's saying that He is in control of your life and situations. क्योंकि वो कह रहा है कि हर एक परिस्थिति में वो आपको कंट्रोल करता है। So we come into the house of God with praise. तो हम परमेश्वर के भवन में आते हैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए, We go into our home with praise. और स्तुति के द्वारा हमारे घर में हम जाएंगे। We go to our work with praise. हमारे काम में हमें जाना है स्तुति के We द्वारा। go to school with praise. स्कूल में भी हमें जाना है स्तुति के द्वारा। No matter what we do, we need to be a praising Christian. चाहे हम कुछ भी करें लेकिन हमें स्तुति करने वाला मसीह बनना चाहिए। I can confess you one thing today that I don't pray much. मैं आपको आज स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता हूँ। You may be praying more than me today. आप मेरे से भी ज्यादा प्रार्थना करते हैं But शायद, it's been a couple of years in my life लेकिन ये कुछ साल से होते आ रहे हैं मेरे that जीवन I've में stopped praying more. कि मैं प्रार्थना करना ज्यादा बंद कर दिया, But I've started praising the Lord all the लेकिन time. मैं हमेशा परमेश्वर को स्तुति देना ज्यादा कर चुका हूँ। Because I realized that in all my life, in the last 20 years of my Christian life, कि मैंने जान पाया मेरे पिछले 20 साल के मसीह जीवन में I've come to understand that God knows my needs. मैं जान पाया कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को जानता है, And I know that He gives me all my needs. और मुझे पता है कि मेरे हर एक जरूरत को वो पूरा करता है। And I'm also reminded in the Word of God that before I would ask, God knows my और needs. परमेश्वर के वचन में याद दिलाता है कि मैं मांगने से पहले परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करता है। My dear friend, God has time and time again have proved to me that even before I could ask, God has given me my needs. मेरे प्रिय परमेश्वर ने मुझे प्रूव किया है, मैं मांगने से पहले मेरे जरूरत से पहले परमेश्वर ने हर एक जरूरत को पूरा किया है। If God has given your needs before you ask, I can hear an amen this morning. अगर परमेश्वर आप मांगने से पहले परमेश्वर ने आपको जरूरत को पूरा किया तो इस समय आप आमीन कह सकते हैं। Having said that, I'm not saying don't pray.
इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना नहीं करना है। I do pray every day, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, but I don't pray more every day, लेकिन मैं हर दिन ज्यादा प्रार्थना नहीं करता but हूँ, I praise Him all the time. लेकिन मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, Because I've realized क्योंकि मैंने जान पाया when I butter God up, जब मैं परमेश्वर को बटर लगाता हूँ, जब हम मस्का लगाते हैं, मस्का लगाते हैं, when we butter God up, जहाँ परमेश्वर को मस्का लगाते it हैं makes Him happy. तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं उस समय। Just like my children when they butter me up, जैसे मेरे बच्चे लोग मुझे मस्का लगाते हैं, it makes me happy. ये मुझे खुशी देती है। And so when we butter God up, जहाँ परमेश्वर को मस्का लगाते हैं, it makes God happy. ये परमेश्वर को आनंदित मिलता है। We are not buttering Him up out of lies, तो हम झूठ के द्वारा हम परमेश्वर को हम मस्का नहीं लगा रहे हैं, but we praise Him because we really mean it. क्योंकि हम सही मतलब से हम परमेश्वर के हम बटर लगा रहे हैं। And so God meets our needs. तो परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करता When we है। pray, He answers our जब prayer. हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। But my dear friend, many a times we pray, but we forget to praise Him. लेकिन मेरे प्रिय, कई समय हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम स्तुति देना हम भूल जाते हैं। That's why a lot of Christians don't give testimony. इसलिए बहुत सारे मसीह लोग आज गवाही को नहीं देते हैं। We always pray, हमेशा हम प्रार्थना करते हैं, but we forget to praise Him. लेकिन हम स्तुति देना भूल जाते हैं। Oh God, give me this. प्रभु मुझे ये दो, Oh God, I need this. प्रभु मुझे वो जरूरत है, Oh brother, please pray for me. भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, Pastor, please pray for me. पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। And then God answers the prayer. परमेश्वर उत्तर देता है प्रार्थना का। But then it's time to praise Him. तो वो समय क्या है? स्तुति देना। And we don't. तो उस समय हम नहीं करते Oh हैं। my dear friend, we need to be praising Him all the time. मेरे प्रिय, हमें हर एक समय परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। When we come into the house of जहाँ God, हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, when we sing praises to जहाँ हम Him, स्तुति गाते हैं, when we worship Him through जहाँ singing, हम गाना के द्वारा आराधना करते हैं, we need to be praising Him. हमें स्तुति करना चाहिए परमेश्वर When की। we read the Word of जहाँ God, हम बाइबल को पढ़ते हैं, we need to be praising Him. हमें परमेश्वर की स्तुति करना When है। we hear the Word of जहाँ हम God, वचन को सुनते हैं, we need to be praising Him. हमें परमेश्वर की स्तुति We करना need है। to be praising Him for all the benefits that we have received from हर एक Him. उपकार जो हमने प्राप्त किया उसके लिए हमें स्तुति करना We है। need to be praising Him with all our soul. हमारे पूरे प्राण से हमें स्तुति करना है। We need to be praising Him with all our strength. हमारे सामर्थ्य से हमें स्तुति करना है। There is great blessing in praise. और अगर हम स्तुति करते हैं, बहुत ही आशीष की बात है। And so I just continue to praise the Lord all the तो मैं time. लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहता I हूँ। praise Him when I walk. जब मैं चलता हूँ उस समय स्तुति करता I हूँ। praise Him when I run. जब मैं रन करता हूँ उस समय स्तुति I करता praise हूँ। Him when I'm lying down. जब मैं सोता हूँ वहाँ पे भी स्तुति करता I'm हूँ। praising Him when I'm driving. जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस समय मैं स्तुति I'm करता हूँ। praising Him when I'm studying the Word of जब God. परमेश्वर के वचन को स्टडी करता हूँ उस समय मैं स्तुति करता हूँ। Because I've realized that when I praise God, He becomes happy. क्योंकि मैंने जान पाया जब मैं स्तुति करता हूँ परमेश्वर खुश हो जाता I है। believe this morning when you all came and you sang praises, God was smiling at you. मुझे पता है जब यहाँ पे आकर परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर मुस्कुरा रहे थे। I believe when these young men today they set up everything, God was smiling at जब them. जवान लोग यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक कर रहे थे, परमेश्वर खुश हो रहे थे उस समय। Even when we serve the Lord, God is smiling at जब हम us. परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर खुश हो जाते हैं। Because when we work for God, it is a worship unto जब हम God. परमेश्वर के लिए करते हैं, ये परमेश्वर की और एक स्तुति होता है। Work is worship. जो काम है वो आराधना होता है। Not for me, but for Him. मेरे लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए। And so we need to work for Him. तो हमें काम करना चाहिए परमेश्वर के लिए। So everything you and I do should be converted into praise. जो कुछ भी हम करते हैं वो स्तुति में होना चाहिए, For there is power in praise. क्योंकि स्तुति में सामर्थ है। In the book of Acts chapter 16, और प्रेरितों का काम 16 वचन में we read about Paul and Silas and Luke were walking in a market one day. हम पौलुस और सिलस के बारे में देखते हैं। जब वो लोग मार्केट की ओर जा रहे थे, Paul, Silas and Luke were walking in the market one और day. पौलुस, सिलास और लूका उन लोग मार्केट की ओर चलते And जा they रहे were थे। going and preaching the word of वो God. जाकर प्रचार कर रहे थे। And as they were preaching the word of तो जैसे वो God, लोग प्रचार कर रहे थे, there was a young lady there in the market. और यहाँ पे एक युवती थी। She maybe was a teenager. शायद वो टीनेजर की एज में थी उस And समय। she was consumed and be possessed by the spirit of divination. और उसको अटकल आत्मा से वो प्रकट हो चुकी थी। The spirit of divination simply means जो अटकल की आत्मा, इसका मतलब that with the power of the evil spirit, जब दुष्ट आत्मा आते हैं, you are able to prophesy about the future. आप उस समय भविष्यवाणी कर सकते हैं। With the power of the evil spirit, शैतान की आत्मा के सामर्थ्य से you can tell about a person's identity. और आप एक व्यक्ति के बारे में आप बता सकते हैं। My dear friend, that's why we need to be very careful today इसलिए मेरे प्रिय, हमें बहुत ही सावधान रहना है। that when a woman stands up and start prophesying in the church, जब औरत खड़ी होकर भविष्यवाणी करती है or कलीसिया when a में, man stands up and starts telling about your future, जब मनुष्य खड़ा होकर
भविष्यवाणी करता है। If you want to know anything about your future today, अगर आप आज भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, it's right here in the Word of तो God. ये परमेश्वर के वचन में यहाँ पे है। Your prophecy is the Word of God. आपकी जो भविष्यवाणी है वो परमेश्वर के वचन है। When the Word of God was not written, जब परमेश्वर के वचन लिखा नहीं गया था, God picked up some men परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना and He gave them the message of the future, और भविष्य के बारे में उन्होंने उन लोगों को मैसेज दिया and they prophesied. और उन्होंने भविष्यवाणी की। And that same prophecy और वही जो भविष्यवाणी is now written in the Word of God. इस समय बाइबल में लिखा गया है। What is going to happen tomorrow, जो कुछ कल होने वाला है what is going to happen in the days to और come, जो आने वाले दिनों में होने वाला what है is going to happen in the months and years to और come, कुछ सालों में क्या होने वाला है, it's prophesied in the Word of God. परमेश्वर में के वचन में पहले से भविष्यवाणी की You गई should है। not be going to a man to lay hands on your head and prophesy about your life. मनुष्य के पीछे जाकर आपको उसके हाथ को रगवा कर आपको प्रार्थना नहीं करवाना है। You could be claiming a lot of problem in your life. शायद उस समय आपके जीवन में बहुत सी समस्याओं को बुलाएंगे। Your prophecy is in the Word of God today. आपकी जो भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में आज God's complete prophecy is in the Word of God today. परमेश्वर की जो पूरा भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में आज The problem today is आज जो समस्याएं हैं, people want some man to put their hands on their head लोग चाहते हैं कि जो लोग उन लोग के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें and they want to tell them about the future, और लोग चाहते हैं कि उन लोग के भविष्य के बारे में बताएं and they go to the parrot और उन लोग वहां पे तोता के पास जाते or हैं they get some cards और कुछ कार्ड उन लोग उस समय प्राप्त करते or they हैं go to a crystal ball. और कुछ क्रिस्टल बॉल में उन लोग लेके जाते And the हैं। same thing today is happening in the church. और आज वही कलीसिया में भी हो रहे हैं आजकल। A woman calls herself to be a prophetess और एक औरत अपने आप को भविष्यवक्ता कहती हैं and she will tell, I'm going to tell you about your future. और वो कहेगी कि मैं आपके भविष्य के बारे में बताने जा रही हूँ And a man says, I'm going to tell you about your future. और एक मनुष्य कहेगा कि मैं आपके भविष्य के बारे में बताने जा रहा हूँ And a man will come और जो मनुष्य आएंगे and say, oh, God is telling me something. और उस व्यक्ति कहेंगे परमेश्वर मुझे कुछ कह रहा है। There is somebody in this room with a name called S. और यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम एस से शुरुआत होता है। Anybody S here? क्या यहाँ पे कोई एस से Oh, शुरुआत God होना? is telling me S, starting with S. परमेश्वर कुछ ऐसा एस कुछ कह रहा है इस प्रकार से And I can see some S in this room. और मैं इस रूम में कुछ एस देख सकता And say, हूँ oh, God is telling me you're going to get married very soon. और परमेश्वर के मुझसे कह रहा है कि आप बहुत जल्द शादी करने वाले हैं And so young lady gets up whose name starts with S. और वो लड़की खड़ी हो जाती है जिसका नाम एस से शुरुआत होते हैं Shiny stands up. और शाइनी उस समय खड़ी हो जाती हैं Sureka stands up. सुरेखा खड़ी हो जाती हैं Stella stands up. स्टेला भी खड़े हो जाते हैं Shushma stands up. सुषमा भी खड़ी हो जाती हैं Shushila stands सुशीला up. भी खड़ी हो जाती हैं Everybody with S stands up. और जिसका नाम एस से शुरुआत है, लोग खड़े हो जाते हैं Yeah, I'm going to get married. कि मैं शादी करने वाली हूँ। Of course, if you're not married, you will get married. अब अगर शादीशुदा नहीं तो आप शादी करने वाले जरूर। That's not prophesying. उसको हम भविष्यवाणी नहीं कहते हैं That's the reality of life. और वो सच्चाई है जीवन If का। you're not married, अगर आप शादीशुदा नहीं and हैं, if you're asking God for marriage, अगर आप परमेश्वर को पूछ रहे हैं शादी के you लिए, will marry. आप शादी जरूर करेंगे। It's written in the Word of God. परमेश्वर के वचन में लिखा गया Oh, है। there is somebody in this room. और एक रूम में ऐसा कोई व्यक्ति है, Oh, some name is coming in my mind. कुछ नाम मेरे मन में इसमें आ रहे हैं It's starting with A. और ए से शुरुआत होता है Oh, God is telling me somebody is the A is here in this room. और प्रभु मुझे कह रहा है कुछ ए से नाम के एक व्यक्ति है यहाँ पे And then Alvin stands up. और ओल्विन उसमें खड़े हो जाते हैं, Ashok stands up. अशोक खड़ा हो जाता है, Augustine stands up. अगस्टिन खड़ा हो जाता Oh, है। God is telling me that God is going to bless you financially. प्रभु मुझे कह रहा है आपको धन से प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं Alvin is saying, I wish I get some money. और ओल्विन कह रहा है अगर मुझे अच्छा हो अगर Ashok पैसा is मिले- telling, I wish I get some money. अशोक भी कह रहा है अगर मुझे कुछ पैसा मिले तो अच्छा होगा। Augustine is saying, I wish I have some money. अगस्टिन भी कह रहा है कि अगर मुझे अच्छा हो पैसा मिले तो Who doesn't need money today? किसको पैसा नहीं चाहिए आज, Everybody needs money. हर किसी को पैसा चाहिए रहता But है, that's not a prophecy. लेकिन उसको हम भविष्यवाणी नहीं कहते God's हैं। word says, परमेश्वर का वचन कहता है if you want money, अगर आपको पैसे की जरूरत you है need to work. आपको काम करना है, If you don't work, अगर आप काम नहीं करेंगे you should not eat. आपको खाने की अब अनुमति नहीं है। A man standing in a pulpit जो यहाँ पे पुलपित में खड़े होते हैं and saying, I'm going to और मैं prophesy, भविष्य करने वाला हूँ, you're going to get money, आपको पैसा मिलने वाला है is a false prophet. और उसको हम झूठा भविष्यवक्ता कहते Because हैं। God's word कि says, परमेश्वर के वचन कहता है if you don't work, अगर आप काम नहीं करते हैं you're not supposed to eat. आपको खाना नहीं है And God will not go against His और word. परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। So, my dear तो friends, मेरे प्रियो, we can stand and pretend everything about prophesying. हम यहाँ पे खड़े होकर हम नाटक कर सकते हैं कुछ भी, But no. Your prophecy is written in the Word of लेकिन God. आपकी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में लिखा गया Your है। life is written in every pages आपके of the जीवन Bible. हर एक पेजेस में लिखा गया है। About you is written in from the 66 books of the Bible.
Bible. और 6 बाइबल में आपके बारे में लिखा गया है। Everything about your future is here. आपकी भविष्य के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा गया Your है। future is, आपकी जो भविष्य है, if you ask anything in my name, I shall give it unto you, Jesus said. यीशु ने कहा अगर मेरे नाम में तुम लोग कुछ That's मांगोगे your मिलेगा। prophecy. वही आपकी भविष्यवाणी है। Your future is आपकी जो भविष्य है, that it is good thing to desire God's blessing. और ये परमेश्वर की इच्छाओं को मानना वो बहुत ही And अच्छा so है। you praise God, परमेश्वर की स्तुति करना है, your blessings will come. आपके आशीष आएंगे। You don't need a man putting hands on your head. आपको जरूरत नहीं लोग आपके ऊपर हाथ रखें, You don't need that. आपको उसको जरूरत नहीं है। God's hand is upon you. परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर है। If you are a child of God, God's mighty hand is upon you अगर आप today. परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर है। You don't need a sinful, rotten man putting hands on your जो head. सड़ा हुआ आदमी की हाथ आपके ऊपर नहीं चाहिए। You don't need a stinking, rotten woman putting her hands on your head. सड़ा हुआ औरत की हाथ आपके ऊपर नहीं That चाहिए। is just a manipulation. वो केवल मैनिपुलेशन होता That है is just for making big crowd. और बहुत ही लोगों को लेके आना वो You तरीका see, होता है। everybody who prophesied did not prophesy about coronavirus. जो लोग प्रोफेसी करते हैं उन लोग कोई भी कोरोना वायरस के बारे में प्रोफेसी नहीं किया। And everybody that claims to do healing and filling cannot remove the coronavirus out of this world. जो लोग कहते हैं अपने आप को मेरे पास चंगाई का सामर्थ्य है, उन लोग कोरोना वायरस को निकाल नहीं सकते हैं। Every prophesy healing deliverance meetings are closed in Goa. आज देखते हैं बहुत सारे प्रोफेसी की जो मीटिंग्स हीलिंग के सब बंद है आज, People are running to Sheolim. और सभी लोग शिवलिंग में भागते हुए जा रहे हैं। Today it's closed. आज वो बंद है, No filling and healing. कोई भी हीलिंग विलिंग नहीं है। People run to Panjim आज लोग पंजे में भागते for हैं miracles and prophesying. चंगाई के बारे में, भविष्य के लिए। But it's closed. लेकिन आज बंद है। Now in front of the camera they are sitting. लेकिन कैमरा के आगे उस लोग बैठ रहे My हैं। dear friends, मेरे प्रियो, your prophesy is in the word of आपकी जो God. भविष्य है वो परमेश्वर के वचन में है। Any man that stands up, जो कोई खड़े होते हैं, any woman that stands जो up औरत खड़े होते हैं and says, I've got the gift of और prophecy लोग कहेंगे मुझे सामर्थ मिला गया and I'm भविष्य going के to बारे में, prophesy about your life. और आपके जीवन के बारे में भविष्यवाणी करूंगा। Today in this day and age, तो आज के ये समय में after the word of God is completed and given to you, परमेश्वर के वचन पूरा होने के बाद आपको दिया गया if है। anybody says that, अगर वो आपको कहते कोई भी, it is with the spirit of divination. तो ये अटकल आत्मा के द्वारा होता है, It's not by the spirit of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। My Bible says मेरी वचन कहता है the spirit of prophecy is the Holy Spirit, जो भविष्यवाणी की जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, and the word of God is the word of the Holy और Spirit. जो परमेश्वर के वचन वो पवित्र आत्मा का वचन है। That's what the Bible says, that all scripture is given by the inspiration of और God. इसीलिए लिखा गया हर वचन अनुप्रेरणा के द्वारा दिया गया है। So this young lady was there. तो ये युवती वहां पे थी She had the spirit of divination, और उसके बाद अटकल की आत्मा थी। which means she was able to look at you and prophesy about you. इसका मतलब आपको देखते हुए आपके भविष्य के बारे में बता So सकते as हैं। Apostle Paul, Silas and Luke were walking through the market, तो जैसे पौलुस, सिलास और लूका वहां पे जा रहे थे वहां से, the lady looks at her, और उस looks समय- at them. और जो युवती हो उन लोगों को देखती है। In verse number 16 we read और 16वें वचन में हम देखते हैं that a certain damsel possessed with a spirit of divination matters which brought her masters much gain by soothsaying. और लिखा है जब हमें प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो एक दासी मिले था जिसका भाभी कहने वाली आत्मा थी और भाभी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। So that's what the Bible says. Modern day prophet and prophetess are doing it for money. तो आज इसीलिए आजकल के जो जमाने के लोग भविष्यवाणी करते हैं उन लोग आज पैसों के लिए कर रहे हैं। That's what my Bible said. और वही मेरा वचन कहता है। It says she brought her masters much gain by soothsaying. और कहते हैं कि वो बहुत सारे पैसा लेके आए भविष्यवाणी करके। What is soothsaying? और अच्छा बात कहना क्या है? Soothsaying is this. Israel, come here. This is what soothsaying is. और अच्छे सही से बात करना वो होता है। Soothsaying means, okay, let me look at you. और यहाँ पे देखो, Oh, when you grow up, जब आप बड़े होंगे you're going to be tall. आप बहुत ही लंबे होंगे। Of course, I know it's going to be tall, मुझे right? पता है वो बहुत ही लंबे होंगे उस When समय। you're going to go into college, जब आप कॉलेज में जाएंगे, I know God is going to put you in good college, मुझे पता है परमेश्वर आपको अच्छा कॉलेज में डालेंगे and you're going to become a good, handsome young man. और आप अच्छा हैंडसम यंग मैन बनोगे You will get married. और आप शादी करेंगे, You will have children. आपके पास बच्चे होंगे। Oh, God is telling me. परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है? Somebody say hallelujah. कोई यहाँ पे हालेलुया कहे। That is what modern day prophecy और is. आज के लोगों का जो भविष्यवाणी यही है, But we know what is going to happen लेकिन हमें पता है क्या होने वाला है, because the Bible says so. क्योंकि परमेश्वर की वचन ये कहता है। But soothsaying is लेकिन जो अच्छे तरीके से बात करना होता calling है himself to be a prophet and prophetess और अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं and manipulating people. और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। Oh, God is telling me you got the gift of apostle and you got the gift of prophesying and prophet. उन लोग कहेंगे परमेश्वर ने मुझे ये सामर्थ दिया, वो सामर्थ दिया है। There is another soothsaying. और एक अच्छा सूद सेइंग वाला They है look at your hand. और अपने हाथ को देखेंगे Oh, you got 1, 2, 3, 4. You get 4 children. और आपको 4 बच्चे होंगे। Did you do that in school? क्या आप स्कूल में करते हैं?
Oh, this long line is you're going to live a long life. और आप बहुत लंबे जीवन जिएंगे। Right? We hear all that thing. When I was in a college, जब मैं कॉलेज में था, my PT teacher मेरी जो पीटी टीचर थी looked at my hand. और मेरे हाथ को देखा। You see, when I was in college, I was very skinny and small. जब मैं कॉलेज में था बहुत ही पतला था और छोटा था। So anybody would look at me and make their own assumption. और उन लोग मेरे को हमेशा देख के कुछ ना कुछ करते थे। So my PT teacher saw me, तो पीटी टीचर ने मुझे देखा looked at my और hand, मेरे हाथ को देखा and he said to me, और उन्होंने कहा मेरे से, "You're not going to be successful in life. आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। You will never able to fly on aeroplane." आप एरोप्लेन में कभी भी उड़ के नहीं जाएंगे। Honestly, और सच में कहता हूँ, in my family, मेरे परिवार में, all of my family, मेरे जो पूरे परिवार हैं, all over the world in my family, पूरे संसार में जो मेरे परिवार हैं, I'm the only guy who flies all the time. मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो हमेशा मैं फ्लाइट से उड़ के जाता हूँ। Now there are people in my family who fly, और मेरे परिवार में कुछ लोग हैं, उन लोग भी जाते हैं, but I'm the only one who flies all the time. लेकिन मैं ही वैसा व्यक्ति हूँ, हमेशा मैं जाता हूँ। That's what God does. और वही परमेश्वर करता है। But that soothsaying was wrong. लेकिन जो उस प्रकार से जो उन लोग कहते हैं वो गलत है। But everybody give a round of applause for Israel. So that's what modern day prophecy is. और वही आजकल के जो भविष्यवाणी वही है, Soothsaying. और अच्छे अच्छे बात करना It's to bring gain. और फायदे को लाना। Apostle Paul got angry. और पौलुस वहां पे गुस्सा हो He गया looked at that girl. और उस युवती को उसने देखा। You know what that girl actually said? और वो लड़की क्या कही पता है? She was not telling lies. और वो झूठ नहीं कह रही थी, She was telling the truth. और वो सच कह रही थी। But she was telling the truth with evil spirit. लेकिन वो सच कह रही थी बुरे आत्मा के अनुभव में। So not evil spirit, Satan always does not tell lies. जो शैतान की आत्मा हमेशा झूठ नहीं कहता है, 99% time he tells the truth. और 90% हमेशा सच कहेंगे, And the 5% he tells lies. और जो बाकी जो परसेंटेज है वो हमेशा झूठ कहेंगे। And so here she tells the truth. और यहाँ पे वो सच को कहती है। The Bible says in verse number 17, और 17वां वचन में कहता है, the same followed Paul and us. वो पौलुस के पीछे होकर, So you always remember the word us. और हमेशा जो हमारा जो शब्द उसको आप याद करना है। 99% of the preacher will say Paul and Silas were inside the prison. और 90% लोग कहेंगे जो पौलुस और सीलस जेल के अंदर There were थे, 3 people inside the prison. लेकिन 3 जन थे वहां पे जेल के अंदर, Paul, Silas and Luke. पौलुस, सीलस और लूका। But Luke never tells his name लेकिन लूका ने अपने नाम को कभी नहीं कहा, because he is the author, human author. क्योंकि वही लेखक था वो किताब के। But the Bible says लेकिन बाइबल कहता है, the same followed Paul and us वो पौलुस और हमारे पीछे होकर and cried saying, और चिल्लाकर कही, these men are the servants of the Most High God, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है, which show unto us the way of जो salvation. हमें उद्धार के मार्ग कथा सुनाते हैं। You see, she told the truth. और उसने सच को कही। This woman with the spirit of divination, the damsel with the spirit of divination said, this man, they are the man of God, of the Most High और God. जो अटकल आत्मा वाली थी उसने कहा कि ये परम प्रधान परमेश्वर की दास है, They show unto us the way of और salvation. हमें उद्धार के मार्ग को दिखाता है। Just because a woman told the truth does not mean she is a woman of God. और ये औरत अगर सच को कही इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर की बच्ची हैं। No, he put his hand on me, she put her hand on me, and she told exactly the truth. नहीं, उसने उस व्यक्ति ने अपने हाथ को मेरे ऊपर रखा और मेरे बारे में सच को कहा। It is by the spirit of divination. और ये अटकल की आत्मा के द्वारा है। Everything about you is in the Word of God. जो कुछ भी आपके जिम्मे वो बाइबल में है। You need to be studying the Word of God. आपको परमेश्वर के वचन के अध्ययन करना You है। need to be reading the Word of परमेश्वर के God. वचन को पढ़ना है आपको। You need to be hearing the Word of God. परमेश्वर के वचन को सुनना है। Faith cometh by hearing the Word of God, विश्वास आता है वचन को सुनने के द्वारा, not by some prophecy. कोई भविष्यवाणी सुनने के द्वारा नहीं। And so here the woman speaks the truth, तो यहाँ पे वो औरत सच को कहती है, but with the evil spirit. लेकिन बुरी आत्मा होने के Apostle द्वारा। Paul got angry. और वहाँ पे पौलुस गुस्सा हो जाता है, Paul got angry and he was sorrowful. और पौलुस गुस्सा होकर वो दुखी हो जाता The है। Bible says, and this did she many days. और ये बहुत दिनों के लिए वो करती रही। But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, I command thee in the name of Jesus Christ to come thee out of her. And he came out the same hour. मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। The Bible says the evil spirit was a male. और बाइबल कहता है कि जो बुरी आत्मा था वो मेल था।
Always the evil spirit is a male. वो पुरुष था, Whether it is inside a man or a woman, it's always a male. चाहे वो औरत के अंदर या फिर पुरुष के अंदर, वो हमेशा पुरुष But रहता anyway, है। that was not my message today. I don't know why I'm saying these things. लेकिन वो मेरा मैसेज नहीं आज। My message is praise. मेरा जो मैसेज है वो स्तुति के बारे में है। But you need to understand this truth also before you praise. लेकिन आपको स्तुति करने से पहले इस सत्य को आपको जानना भी है। And so immediately when Apostle Paul commanded and rebuked, तो जैसे पौलुस ने वहां पे आज्ञा दिया, the evil spirit comes out of her. जो बुरी आत्मा है वो तुरंत बाहर आ गया। Now she has no power. ना अभी उसके पास कोई सामर्थ नहीं Now है। she cannot prophesy. अभी वो भविष्यवाणी नहीं कर सकती है। Now she cannot do anything. वो अभी कुछ नहीं कर सकती है। So her master got angry. और उसके जो मास्टर्स थे वो सभी लोग गुस्सा हो गया। He caught Paul, Silas and Luke और उन लोग ने पौलुस, साइलस और लूका को पकड़ and they लिया beat them very badly. और उन लोग को बहुत बुरी तरीके से मारा। They beat them. उन लोग को लहू बहना शुरू हो गया They really beat them very badly. और बहुत बुरी तरीके से उन लोग को पीटा गया। The Bible says और परमेश्वर की वचन कहता है in verse number 22, और 22वें वचन में कहता है, and the multitude rose up together against them, and the magistrate rent off their clothes and commanded to beat them. तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों उनके कपड़े फाड़ कर उठा डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। Verse number 23, और 23वां वचन में कहता and है, when they had laid many stripes upon them, बहुत बेत लगवा के उन्होंने वहां पे बंदी किया, which means they beat so much that all stripes were upon their body, चाबुक से उन लोगों को पीटा गया and they cast them into prison, और लोगों को बंदी गृह बना गया, डाल गया charging the jailer to keep them safely. और उन लोगों को सही तरीके से रखने के लिए वहां पे अंदर जेल में। So now they are beaten very badly. तो उन लोगों को बहुत ही पीटा गया। Verse number 24, और 24वां वचन में who कहता है, having received such a charge, और उसने इसे आज्ञा पाकर and thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. उन्हें भीतर की कटोरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। So now they are put in the prison तो उन लोगों को इसमें जेल में डाला गया, and they are beaten very badly, उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा and गया their life is uncomfortable. और उन लोगों के जो जीवन है बहुत ही अनकंफर्टेबल है इस समय। What would you do? उस समय आप क्या करते? Everything is against Paul and Silas right now. और सब कुछ पौलुस और साइलस के खिलाफ है। There is pain. उन लोग के जीवन में दुख थे, Their body is hurting. उन लोग के जो शरीर वो दर्द कर रहे They've थे। been doing good. उन लोग अच्छे कार्य को कर रहे थे, They were preaching the word of उन God. लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे, Everything was good. सब कुछ ठीक ठाक था। They were doing it for the glory उन of लोग God. परमेश्वर की महिमा के लिए कर And they रहे were थे trying to win as many people to और Christ. लोगों को परमेश्वर में लाना चाहते थे। They wanted people to get out of उन hell लोग चाहते थे लोग नरक से छुटकारा पा सके and have their sins और forgiven. लोग के पाप छुटकारा पा सके। But this is what happened. लेकिन वही हुआ, They were beaten by people लोगों ने उन लोगों को बहुत ही बुरे and they were तरीके से put in पीटा the prison. और लोगों को जेल में डाला गया। What would you do if you were going through this situation? अगर उस परिस्थिति में आप जाते उस समय आप क्या करते? Honestly, सच में बताइए। God, you are not even watching me. प्रभु आप मुझे देख भी नहीं रहे हैं, Why you're doing this to me? क्यों आप मेरे जीवन में ये सब कर रहे हैं? I'm doing all this for you. मैं आपकी महिमा के लिए सब I कुछ go कर to रहा हूँ। church. मैं कलीसिया को जाता हूँ, I pray. मैं प्रार्थना करता I हूँ, read my Bible. वचनों को पढ़ता हूँ मैं। But Lord, why this suffering? देखिए प्रभु जी मेरे जीवन में ये क्यों है? Why this financial problem? क्यों ये मेरे जीवन में धन दौलत की प्रॉब्लम है? Why this sickness? क्यों ये रोग बीमार है? It's not wrong to ask God why. ये परमेश्वर को गलत नहीं पूछना क्यों, But then are we always complaining when problems happens in our lives? लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है क्या हम हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं? Paul, Silas and Luke tells us something else. और पौलुस और साइलस और लूका यहाँ पे कुछ कहता है। They are giving us another option. उन लोग हमें कुछ अलग ऑप्शन दे रहे In हैं fact, the right option. और सही ऑप्शन को दे रहे हैं। They are telling us that there is a power in praising God in the midst of problem. और लोग हमें कह रहे हैं समस्याओं के बीच में भी एक सामर्थ्य है स्तुति में। When you are in the prison, you should praise God. जब आप जेल में आप उस समय परमेश्वर की स्तुति करना है। When you are in the problem, you should praise God. जब समस्या में उस समय आपको स्तुति करना है। Hey dear friend, there is a day that's going to come. मेरे पूरे ऐसा एक दिन आने वाला है। If you continue to worship the Lord Jesus Christ, the world is going to be against you. अगर आप लगातार परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं तो पूरे संसार आपके विरुद्ध हो जाएंगे। They might put you in the prison. शायद लोग आपको जेल में डाल सकते हैं। Are you willing to come with me in the prison someday? क्या मेरे साथ आप सब आने के लिए तैयार है जेल में? Or tomorrow if somebody comes here and tries to take you to the prison, you're going to run away from here. अगर कोई यहाँ पे कल को आकर हमें सबको जेल में लेके जाने के लिए आएंगे तो आप शायद भाग सकते हैं। And say, oh no, I'm not with them. I'm not with them. नहीं मैं उन लोग के साथ नहीं हूँ, उन लोग के साथ नहीं हूँ। I don't believe in Jesus. मैं यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। Please leave me. I will just go and worship my idol. मुझे छोड़ दो, मैं मूर्ति का पूजा करूंगा जाकर। Or you're going to stand up
क्या आप खड़े होकर and say, और आप कहेंगे no matter what, चाहे कुछ भी हो, I am the child of मैं God. परमेश्वर की संतान I am हूँ, the servant of मैं God. परमेश्वर की सेवक हूँ। You can do whatever you want. चाहे आप कुछ भी कर I सकते will हो। come to the prison. मैं प्रिजन में जाऊंगा I'll come to the palace. और वहां भी जाऊंगा मैं I'll go everywhere for Jesus. मैं यीशु मसीह के लिए कहीं भी But जाऊंगा, I will not give up Jesus. लेकिन मैं यीशु को कभी नहीं त्यागूंगा। I will not ever disobey the word of मैं God. परमेश्वर के वचनों का खिलाफ नहीं I'm जाऊंगा। going to believe and be obedient to the word of मैं God. परमेश्वर के वचनों का पालन करूंगा, Whether there is a lockdown, चाहे लॉकडाउन हो, whatever happens, कुछ भी हो, the church of the living God will be open. परमेश्वर की जीवित जो कलीसिया हमेशा खुला रहेंगे। Just as the word of God is open, जैसे परमेश्वर के वचन खुला है, the church of God should be open. परमेश्वर की जो कलीसिया वही खुला The रहेंगे। people of God should be open in पर- praising Him. परमेश्वर की लोग को भी खुला रहना चाहिए परमेश्वर की स्तुति करने में। God's house should not be closed. परमेश्वर के भवन कभी बंद नहीं रहना Heaven चाहिए। is not closed for you. जो स्वर आपके लिए बंद नहीं है, Church is a picture of heaven on earth. और जो कलीसिया है स्वर का छवि है। If there is a praise in heaven, there should be praise in the अगर church. स्वर में स्तुति हो रहा है तो कलीसिया इस जगह में भी होना चाहिए। No matter what, I'm not going to stop. I'm not going to close the church anyway. चाहे कुछ भी हो, मैं कलीसिया को बंद नहीं करूंगा, And I hope you will come. और मैं आशा करता हूं आप लोग आएंगे। I know you are the church. मुझे पता है आप लोग कलीसिया हैं, And this is the house of God. और यह परमेश्वर की भवन है, And we meet in this building. और ये जगह में हम मिलते हैं, And we will continue to meet. और हम लगातार मिलते जाएंगे, Whether in this place, चाहे ये जगह में, or under a tree, और पेड़ के नीचे, or in an open ground. और खुला मैदान में। We should never stop praising हमें God. कभी बंद नहीं करना चाहिए परमेश्वर की स्तुति We will करना। not obey man, we will obey हम God. मनुष्य को ओबे नहीं करेंगे, लेकिन And परमेश्वर so की आज्ञा Paul पालेंगे। and Silas, तो यहाँ पे पौल और सीलस in the midnight, और मध्य रात में they got together. उन लोग एक साथ वहाँ पे हो गए। You see, in the midnight we are sleeping. और आधी रात में हम क्या करते हैं, हम सोते हैं। We may take tablet and go to sleep. हम शायद टेबलेट लेकर हम सोने के लिए जाएंगे, But you know what Paul and Silas did? लेकिन पौलुस और सीलस ने क्या किया, In the midnight, और आधी रात में Paul and Silas और पौलुस और सीलस and Luke, और लुका, in the midst of pain, और दर्द होने के बावजूद they got up उन लोगों ने खड़े हुए and they began to sing praises और to लोग God. उठकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए They शुरू began किया। to pray to God. उन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। You know what will happen? क्या आपको पता है उस समय, Imagine, और उस समय आप सोचो, tomorrow there is a lockdown. और कल को लॉकडाउन है, And Sunday, you're not allowed to come. और रविवार को आपको अनुमति नहीं दिया जाता है But आने के I'm लिए, going to come. लेकिन मैं आऊंगा। And you say, और आप कहेंगे I'm going to go to church. मैं कलीसिया को जाऊंगा, No matter what. कुछ भी हो, You can stop me, but I will go. आप कुछ भी हो, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। And then you come here. और यहाँ पे आप आते हैं, And everybody comes. और सब लोग आते हैं, And they put you in the jail. और आपको जेल में डाला जाता Are है। you willing to come? क्या आप आने के लिए Are you चाहेंगे? willing to go with me? क्या आप मेरे साथ जाने के लिए You know what we होंगे? are going to do in the jail? क्या आप जेल में हम क्या करेंगे उस They समय? cannot keep our mouth shut. हमारे मुंह को बंद नहीं रख सकते We are हैं, going to go there. हम वहाँ पे जाएंगे। I'll sing praises to your name. हालेलुया। Oh God, praises to your name. Oh God, for your name is great and greatly to be praised. I'll be worshiping your name. Oh God, worshiping your name. अरे पुलिस असं आपण ना. Oh God, and your name is great and greatly to Be praised. we'll be praising his name. हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, We're not going to stop praising हम his name. बंद नहीं करेंगे परमेश्वर की स्तुति करना। Man can say whatever he wants, मनुष्य कुछ भी चाहे वो कह सकता है, but I am going to obey God. लेकिन मैं परमेश्वर का पालन करूंगा। We obeyed God. हम परमेश्वर को पालन करते हैं, We will always obey God. हमेशा परमेश्वर को पालन करेंगे। Inside the prison, we are going to praise him. जेल के अंदर भी हम परमेश्वर की स्तुति ओ करेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी पुलिस है उधर, मैं नहीं आऊंगा। नहीं 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 नहीं।
हालेलुया, डर लग रहा है भाई, हालेलुया, हालेलुया, amen. आमेन। My dear friends, this is what we are going to do. मेरे प्रिय वही हम करेंगे। Even if they beat us, अगर हमें वो मारेंगे, we should be praising Him. हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। Even फिर if भी। they chain us, अगर हमें वो करते हैं इस सब प्रकार we से, should be praising Him. लेकिन हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। That prophecy is in the Bible. जो भविष्यवाणी बाइबल में लिखा Oh, है, Pastor, prophesy. प्रभु पास्टर आप प्रोफेसी करो। The prophecy is this. और जो भविष्यवाणी यही है, If you obey God, अगर आप परमेश्वर का पालन करते they हैं, might take you to the jail. शायद आपको जेल में लेकर जा And सकते they हैं may put you in the और jail. आपको जेल में डाल देंगे। But we are going to say, लेकिन हम ये कहेंगे, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। It looks like only Shishila is going to come with me. हालेलुया। Come on, everybody. सभी लोग आइए। Hallelujah. 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 I can promise you this. मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ ये, The first time when I went to jail for serving the Lord, जब मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए पहली बार जब जेल को गया, they put us in the jail, उन लोगों ने हमें जेल में डाला, but they gave us fish curry rice. लेकिन उन्होंने हमें फिश करी राइस दिया। I cannot forget the fish curry rice. और वो फिश करी को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, It was tasty. बहुत ही टेस्टी था। One of the fellow with me was in the prison. और एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ जेल के अंदर था, He told me after some time, और कुछ दिन बाद उसने मेरे से कहा, Pastor, और एक बार जाएंगे अंदर. "पास्टर, और एक बार जाएंगे Let's हम, go one more time और inside. एक बार जाएंगे हम एक बार।" Because the fish curry was tasty. फिश करी बहुत ही टेस्टी था। My dear friend, whatever we get fish curry or not, चाहे हम कुछ भी हमें मिले या ना फिर मिले, we will obey God. हम परमेश्वर का पालन We करेंगे, will worship हम God. परमेश्वर की आराधना We will करेंगे, praise हम God. स्तुति करेंगे। There is a power in क्योंकि praise. स्तुति में सामर्थ्य है। Paul and Silas and Luke started singing praises to God. पौलुस, सिलास और लूका परमेश्वर की स्तुति करने के लिए They शुरू prayed किया। to God. उन्होंने परमेश्वर की प्रार्थना किया। My dear friend, when they started praising and praying, उन्होंने जब शुरुआत किया प्रार्थना स्तुति करने के whole लिए, night, midnight, they started singing to God. आधी रात तक उन्होंने प्रार्थना स्तुति किया। And when they sang praises, और जो उन्होंने स्तुति गाया, the prisoners heard them. वहाँ पे जो प्रिजनर से दारोगा उन लोग ने वहाँ पे जाग गया, The prisoners heard them. तो दारोगा जाग गया वहाँ You पे। know, when we were put in the prison, जहाँ हमें जेल में डाला जाता है, they locked us in. वो हमें बंद कर दिया They अंदर, put us a lock. और लोग ताला डाल दिया, They said, you cannot come out. और आप लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। Oh, we got inside the और jail. हम अंदर आ गए जेल के We अंदर, all knelt down. और यहाँ पे घुटने में आए, We held the hands. और एक हाथ पकड़े हम दूसरे And का। inside the prison, और जेल के अंदर we started singing praises to हम God. स्तुति गाना शुरू किया, The police were all surprised. और पुलिस लोग सब सरप्राइज हो गए उस They समय। say, "Arey, everybody gets angry inside the prison. देखो सभी लोग जेल के अंदर गुस्सा होते हैं, But why are you singing? Why are you singing?" लेकिन तुम लोग क्यों गा रहे हो? And we sang, और हमने गाया, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. And the prisoners heard us singing praises to और God. दारोगा ने सुना हमारे गाते हुए, The police heard us singing और praises to पुलिस God. लोग ने भी सुना परमेश्वर की स्तुति गाते हुए, And they say, "Why do you do this?" और उन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्यों करते हो? And I shared the gospel to the और on the मैंने policemen. उन लोगों से सुसमाचार को मैंने शेयर This is किया, exactly what happened. और वही हुआ। They sang praises to उन्होंने God. परमेश्वर की स्तुति किया, They prayed. उन्होंने प्रार्थना Or किया, everybody heard. सभी लोग ने सुना। But there is something that happens when you praise God. लेकिन जब स्तुति करते हैं कुछ होता है यहाँ पे। Verse number 26 और says, 26वां वचन कहता है, "And suddenly there was a great earthquake, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, so that the foundation of the prison was shaken. और यहाँ तक कि जो बुनियाद वो हिल गई, And immediately all the doors were open. और तुरंत सब द्वार खुल गए, And everyone's bands were loosed." और सबके बंधन खुल पड़े। Hallelujah! हालेलुया। When they sang praises to जब God, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति गाया, there was an earthquake. वहाँ पे भूकंप आई, The prison opened. जो द्वार है वो खुल गया, The chains fell off loose. लोग के बंधन भी खुल गया। Oh, dear friend, that's what happened when the praises go up. मेरे प्रिय, जब हम स्तुति करते हैं वही होता है, When praises go up to heaven, जब हमारे स्तुति ऊपर तक जाता है, स्वर्ग तक, on the earth begins to quake. जो संसार है वो धरती हिल जाता है, The prison door opens. जो द्वार खुल जाता है, Whether the police opens or not, God is able to open चाहे it. पुलिस खुले या ना खुले, लेकिन The परमेश्वर खुलता है। chains fell off. लेकिन जो बंधन खुल गया, That is what happens when praises go up. जहाँ हमारे स्तुति जहाँ ऊपर तक जाता है वही होता है। Oh, dear friends, मेरे प्रियो, they could not keep us for a long time inside the prison. जेल के अंदर उन्होंने हमें बहुत देर तक नहीं रख पाया, They got disturbed because of us. उन लोगों को डिस्टर्ब
अपराध हुआ उन लोगों They say, को। "Arey, these guys are not angry. इन लोग गुस्सा में नहीं हैं, They are not giving us bad words. उन्होंने हमें गलत खराब शब्द नहीं They दे are रहे not cursing us. और हमें श्राप नहीं दे रहे, But they are praising God. लेकिन स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर These की। are good इन people. लोग बहुत ही अच्छे लोग They are हैं, praying to उन लोग God. परमेश्वर से प्रार्थना They कर रहे are हैं, good उन लोग people. अच्छे लोग हैं। And they open the lock. उन्होंने द्वार को They खोला open the jail. और जेल को खोला And they say, "You go. और उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, Don't come back." वापस मत आओ। Oh, that's what happened when praises go up. वही होता है जब स्तुति ऊपर तक जाता है। Paul and Silas sang praises to God. पौलुस तो सिलास परमेश्वर की स्तुति गाया, The prisoners heard them. दारोगा सुना वहां पे, The earthquake, और भूकंप, the foundation of the earth shook. जब बुनियाद वो भी हिल गया, The chains fell off. उन लोग के जो बंधन वो भी टूट गया। There is power in praise. और स्तुति में सामर्थ्य है, There is power in praise. और स्तुति में सामर्थ्य है। Not only that, केवल वही नहीं, but the unbelievers heard the gospel. लेकिन अविश्वासी लोगों ने भी There was one सुना। jailer. और यहाँ पे एक दारोगा था, He was afraid. वो डरा हुआ था। He said, "Oh, where's Paul, Silas, and Luke? उसने कहा कि पौलुस, साइलस और लोग कहाँ पे है? Oh, they are not to be found. उन लोग को अभी कहाँ पता नहीं। Oh, the Roman emperor is going to kill me. जो रोमियो के लोग हैं उन लोग मुझे मार देंगे। He's going to say, what were you doing with your लोग duty? कहेंगे आपके ड्यूटी के दौरान आप क्या कर रहे थे? How उस did समय? you leave these three fellows out? किसे तीन लोगों को छोड़ दिया तुम लोग ने? No. नहीं, I don't know. मुझे नहीं मालूम, I don't know what happened. मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। Something in the midnight happened. और आधी रात में कुछ हुआ, The jail is open. यहाँ पे जेल खुला हुआ है, These guys are out. ये लोग सब बाहर हैं, The chain is there. उन लोग के जो बंधन टूट गया है, The prison door is open. जो द्वार खुल गया है, But Paul and Silas is missing. लेकिन पौलुस और सिलास वहां पे नहीं थे, And he wanted to kill और वो himself. अपने आप को हत्या करना He चाहता था, wanted to commit suicide. वो सुसाइड करना चाहता था। And उस you know समय। what happened? और उस समय क्या हुआ पता है? Paul shouted. पौलुस ने चिल्लाकर Paul कहा, said, "No, don't kill पौलुस yourself. ने कहा नहीं अपने को हत्या मत करो, We are here." हम यहाँ पे हैं। And this prisoner heard and asked them, "What must I do to be saved?" और ये दारोगा ने आकर पूछा कि मुझे क्या करना है उद्धार He said, पाने "I के know लिए? this is the power of God. मुझे पता है ये परमेश्वर की सामर्थ्य Oh, है। I did not open the jail, मैंने जेल को ओपन नहीं किया, but there was an earthquake. लेकिन वहां पे भूकंप आई, Oh, the foundation has been shaken. जो बुनियाद है वो हिल गया, There's a crack on the wall. पूरा दीवार टूट गया Oh, है, the paints have fallen off. पूरे चीज गिर चुका है, The cement has fallen. सीमेंट भी गिर चुका है। Oh, I know this is the power of मुझे God. मालूम है परमेश्वर की सामर्थ्य है। Paul, पौल, Silas, सिलस Luke, और लूका, tell me what must I do? मुझे बताओ मुझे क्या करना है? What must I do to be like you? आपके जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना है? What must I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? Amen. आमीन। When God's people praise in the time of turmoil, जब हर सिचुएशन में जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना the करते हैं, unbelievers will see जो अविश्वासी लोग देखेंगे and they will say, "What can I do to have your God?" और उन लोग कहेंगे मुझे क्या करना है आपके परमेश्वर को प्राप्त करने के Can लिए? you tell me that I may have that power upon me? क्या मुझे आप कहेंगे वो सामने मेरे ऊपर आने के लिए क्या Oh, करना how है? can my life is chained with sin? मेरा जीवन कैसे बदल सकता है मुझे बता How सकते can हैं? I be loosed? और मैं कैसे लूज हो सकता हूँ? What can happen in my life? मेरे जीवन में क्या हो सकता है? Oh, how can I have the joy that is in you? और जो आपके अंदर जॉय है वो किससे मैं प्राप्त करूं? How is it that you are still happy during this और lockdown? इस समय में आप कैसे खुश हो सकते हैं? How is it that you are still fat when this ये lockdown? लॉकडाउन में कैसे मोटे हैं? How is it that you all are not sorrowful in और this ये lockdown? लॉकडाउन में कैसे दुखी नहीं है? How is it that you are still laughing and smiling during this ये lockdown? समय में क्या हंस रहे हैं? We will still praise Him. हम फिर भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे। It's not because of us. ये हमारे वजह से नहीं, It's because of Him. ये परमेश्वर की वजह It's से है। because of the Lord Jesus Christ. ये यीशु मसीह की वजह Oh, से the world you want to know? पूरे संसार जानना चाहता है। Believe in the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का विश्वास करो and thou shalt be और आप saved. उद्धार को पाएंगे। And not only you, केवल वो आप ही नहीं, but also your family. और आपके परिवार भी, Even your family will be आपके saved. परिवार भी उद्धार को पाएंगे। Believe in the Lord Jesus. यीशु के ऊपर विश्वास करो। When you believe in the Lord जब आप Jesus, यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, you will go into the prison आप प्रिजन में जाएंगे उस समय, and you will praise in the आप prison. परमेश्वर की स्तुति करेंगे जेल You, में, you know what? Prison will become a free church hall for us. और हमारे लिए कलीसिया बन जाएंगे। You don't have to pay rent to be आपको worshiping the रेंट Lord. पे करने की जरूरत नहीं है। Amen. आमीन। Afternoon free food, और यहाँ पे खाना मिलने के बाद evening free tea और चाय भी मिलेंगे with Parle G biscuit, और पार्ले जी बिस्किट के साथ, and in the night free food. और पूरी रात में भी Oh, खाना, you'll get free soap. और साबुन भी मिलेगा, No paying money for soap. और साबुन के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, Everything is free. सब कुछ फ्री मिलेगा। फुक्कट का हवालात. Everything is free in the सब कुछ prison. फ्री है जेल में।
Amen. आमेन। We will go for Jesus हम Christ. यीशु मसीह के लिए जाएंगे, But we will never bend down to man. लेकिन हम मनुष्य के आगे नहीं झुकेंगे कभी We भी। will go in the prison for Jesus. हम प्रिजन में जाएंगे यीशु के लिए, And we will worship the Lord. हम यीशु की आराधना करेंगे, We will praise the Lord. हम स्तुति करेंगे। Even if the whole world comes against पूरे us, संसार हमारे खिलाफ हो we जाए, will stand up and stand up for Jesus. हम खड़े होंगे यीशु मसीह के लिए, And we will sing praises to हम Him. यीशु की स्तुति गाएंगे, We will sing praise in the prison. हम जेल में भी स्तुति गाएंगे। To take all of you, jeep is not sufficient. और जीप में जाने के लिए आपको जगह नहीं होगा, There will be a big bus, और बड़े बस होंगे उस समय, 50-seater bus. और 56 लोग बैठने वाले, Inside the bus, we'll have picnic. और बस के अंदर हम पिकनिक मनाएंगे। You remember when you went to picnic in the school? वो याद है जब हम स्कूल में पिकनिक मनाने जाते You were थे, singing in the bus. बस में गाते हैं। And so in the bus, when we'll go to the जब prison, हम जेल में जाएंगे बस में से, we will sing praises to हम परमेश्वर की God. स्तुति गाएंगे उस समय। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 The first thing that ever happened in the Bible, जो पहली जो चीज जो बाइबल में हुआ है कभी भी, when God laid the foundation of the earth, जब परमेश्वर ने बुनियाद को लगा the संसार Bible का, says praise and worship started. और बाइबल कहती है कि स्तुति प्रशंसा वहाँ पे शुरुआत हुई। In Job chapter 38, they started praising और God. आयुब 38 में वहाँ पे स्तुति शुरू हुआ। The first thing, if anything happened, was praise and worship in और the पहली जो Bible. शुरुआत हुई वो स्तुति प्रशंसा हुआ। You know what is happening in heaven right now? क्या इस समय स्वर्ग में क्या हो रहा है आपको पता है? Everybody is worshiping God. सभी लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे They हैं। are saying, Holy, holy, holy. उन लोग कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, Lord God Almighty, सामर्थ्य खुदा who was, जो था, who is, जो है, and is to be. और जो आने वाला है, And they are worshiping God continually. और लगातार उन लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। Oh, they are saying, उन लोग Thou art worthy, O God, आप ही योग्य है प्रभु to जी, receive all glory and honor, आदर महिमा को ग्रहण करने के to लिए receive all praises. और स्तुति को प्राप्त For करने के thou लिए, hast created all क्योंकि things पूरे संसार को आपने सृष्टि किया for thy glory and pleasure. आपकी महिमा और आनंद के लिए, There is non-stop praise in heaven. और बिना रुके वहाँ पे स्तुति होता है। You and I should be praising God all the और time. हर एक समय हमें स्तुति करना चाहिए, We'll praise Him every moment of our और life. हर एक समय में हम परमेश्वर की स्तुति When करेंगे। you start praising जब आप शुरुआत करते हैं today, आज, you start praising God. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। Whatever chains are upon your life, dear चाहे friend, आपके जी में कुछ भी होंगे बंधन, it's going to break today. आज वो टूटने वाला है। Wherever you maybe feel like you are in a bondage of situation in life, शायद आप बंधन में बंधे हुए, शायद आज इस समय that prison door will open for you वो today. द्वार आज आपके लिए खुल सकता Oh, the है। foundation will shake for you जो today. बुनियाद है वो हिल जाएंगे। You should be a praising Christian. आपको परमेश्वर की स्तुति बना मसीह बनना There may be चाहिए। problem in finance. आपकी धन दौलत में समस्या हो सकती है, Start praising God. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। God will open the tijori of heaven for you. परमेश्वर तिजोरी खोल देंगे स्वर्ग You may से। be having physical problems. शायद आपके जीवन में शारीरिक समस्या Start है, praising God. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें, He is able to give you good health. और आपको अच्छा सोच दे सकता है वो। You maybe have problems in family, आपके परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, problems in education, आपकी एजुकेशन में भी समस्याएं हो सकती problems हैं, in job. आपके कार्य में भी हो सकते You हैं। start praising God. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू Don't करें। give up. आप कभी त्यागो मत, Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति करो, Praise His name. परमेश्वर की स्तुति करो, In the morning, सुबह में, in the evening, और शाम को, in the noon, और दोपहर in को, the night, और रात को, in the midnight. और आधी रात Sing को praises to परमेश्वर की Him. स्तुति गाओ। The prison will be open. जो द्वार है वो The खुल earth जाएंगे, will be shaken. और पूरे संसार The हिल जाएंगे, chains will fall off. जो चैन वो The गिर जाएंगे, foundation will be जो shaken. बुनियाद वो हिल जाएंगे, Oh, people will get saved. लोग उद्धार पाएंगे। The Bible says the prisoner got saved और वहाँ पे दारूगा उद्धार पाया, and his family got और उसके saved. परिवार भी उद्धार पाया। Looking at your life, और आपके जीवन को देखते हुए, people will start getting saved by hearing the gospel from you. और आपकी मुंह से सुसमाचार को सुनते लोग उद्धार को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। There is still power in praise. और स्तुति में बहुत ही सामर्थ्य है। Wherever you are, जहाँ पे भी आप हैं, start praising Him. परमेश्वर की स्तुति करना You may शुरू be करें। walking, dear friend. शायद आप चल रहे हैं, Praise Him. परमेश्वर की स्तुति I करें उस told समय। you I don't pray much, और मैंने कहा कि मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं but करता I हूँ, praise all the time. लेकिन हमेशा मैं स्तुति करता There is हूँ, praise in my mouth. और मेरे मुंह में स्तुति है, I will be walking. और मैं शायद चल रहा हूँ, I'll be praising. और मैं स्तुति कर रहा हूँ उस I'm समय, lying on my bed. और मैं बिस्तर में हूँ, I'm praising मैं Him. स्तुति कर रहा हूँ, I'm driving. मैं ड्राइव कर रहा हूँ, I'm praising. मैं स्तुति कर रहा हूँ, When I'm running, जब रनिंग कर रहा I'm हूँ praising. उसमें स्तुति करता हूँ, Having bath,
जब नहाता I'm हूँ praising स्तुति Him करता हूँ all the time. हर एक समय, Praise Him all the time. हमेशा उसको स्तुति Praise करो Him in the morning. और सुबह को करो Praise Him in the noon. और दोपहर को करो, Praise Him in the evening. शाम को करो Praise Him in the और night. आधी रात को भी करो Praise Him in the और midnight. आधी रात को भी तुम करो You should be a praising Christian. और स्तुति करने वाले मसीह बनना चाहिए There is great power in क्योंकि praise. बहुत ही सामर्थ्य है स्तुति में There is power in prayer, और स्तुति में सामर्थ्य है, but there is great power in praise. लेकिन स्तुति में बहुत ही ज्यादा Shall सामर्थ्य we है। all stand? इसमें हम सभी लोग खड़े हो Let's जाएंगे, all stand. सभी लोग खड़े हो जाएंगे And at this time, let us praise His और name. इसमें हम परमेश्वर की स्तुति Let us करेंगे, lift up our hands to हमारे heaven हाथ को हम इसमें खड़े करेंगे, and उठाएंगे, let us give Him the glory इसमें हम परमेश्वर को महिमा देंगे and say, Lord, और हम कहेंगे प्रभु I am not going to bend down now to the man. और मनुष्य के आगे नहीं झुकूंगा, I will not bow for any man. सभी किसी लोगों के आगे I'm झुकूंगा going to नहीं। make a decision right मैं now. एक डिसीजन बनाने जा रहा हूँ, I'm going to obey you, O मैं आपकी God. पालन करूंगा Anytime. हर समय में। If I have to go to prison अगर मुझे जेल में जाना हो with the church, कलीसिया के साथ I will go. मैं जाऊंगा, If I have to go alone, मुझे अकेला जाना हो I तो will मैं go. जाऊंगा, If the whole world forsake you, अगर पूरे संसार मुझे I छोड़ will दे forsake you never. मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा, If nobody wants to go with me, अगर कोई मेरे साथ नहीं I जाना will चाहता है still go for you, O मैं फिर भी God. आपके लिए जाऊंगा प्रभु जी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 hallelujah. We will obey the government for everything. और हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को पालन करेंगे, We should obey the government for everything. सरकार को हमें पालन करना है That's what the Bible says. और वही परमेश्वर की वचन कहता But है। if they tell us not to worship God, लेकिन अगर हमें कहेंगे परमेश्वर की आराधना नहीं if करने they के लिए, tell us not to obey the word of अगर वो God, कहेंगे परमेश्वर की वचन का पालन नहीं करने के we लिए, will not obey anybody. हम किसी के आगे पालन नहीं करेंगे, But we will obey what God said in His word. लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसका पालन करेंगे। Our obedience is for God alone. हमारे जो पालन है परमेश्वर ही है For God, God's word is our final और authority. परमेश्वर ही हमारा आखिरी वचन है। So if the world comes against our faith, अगर पूरे संसार हमारे खिलाफ आ जाते हैं, we will come against everything. हम सब चीज के खिलाफ आ We जाएंगे, will only obey हम God. केवल परमेश्वर का पालन करेंगे, We will be the best citizens of this world. हम पूरे संसार के अच्छे सिटीजन We'll बनेंगे, obey the government for everything. सरकार को हम पालन करेंगे। But we will never obey if they tell us not to worship अगर God. हम लोग हमें कहेंगे परमेश्वर की आराधना मत करो तो हम पालन नहीं If they करेंगे। tell us not to go to church, we will not obey. अगर हम लोग कहेंगे कि कलीसिया मत जाओ तो हम पालन नहीं करेंगे, We will only obey हम God. केवल परमेश्वर का पालन करेंगे And we will uphold the word of और God. परमेश्वर के वचन को उठाएंगे। Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।